এবং এখন কত বডিজে লড়বো। এমনিতে আমরা ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে 35 সিটসের একটা ফোকাস নিয়ে চলছি। তার মধ্যে আমরা কত সিট লড়বো সেটা এখনো আমরা মিডিয়ার সামনে বলছি না, কেন যখন আমাদের ক্যালকাটা বডি যখন এটাকে অ্যাপ্রুভ করবে আর তখনই আমরা ওটা ডিক্লেয়ার করবো, যখন আমরা ক্যান্ডিডেটের নামগুলো ডিক্লেয়ার করবো। ইন দ্য সেম ওয়ে আমরা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির জন্য আমরা 15 সিটসের একটা ফোকাস নিয়েছি। তার মধ্যে আমরা কত সিটস লড়বো সেটা আবার আমরা আমাদের অ্যাজ আ পার্টি আমরা কত সিটস লড়বো সেটা আমরা পরে আপনাদেরকে জানাবো। এই 35 এবং 15টা যে টার্গেট সেটা কি মাইনরিটি অধ্যুষিত এলাকায়? দেখুন, আমাদের পলিটিক্সটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিজ এর পলিটিক্স, বহুজন পলিটিক্স যাকে বলে, এসসি, এসটি, ওবিসি এর মাইনরিটিস। অবশ্য মাইনরিটি কনসেন্ট্রেটেড এরিয়াজে যেমন আমরা ফোকাস করব, ঠিক সেভাবে মাইনরিটিসরা যে একটা শুধু ওই এরিয়াতে থাকছে সেটা তো না। বিশেষ করে আমরা যেটা দেখছি কি মাইনরিটি এরিয়াজ অ্যান্ড দ্য ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিজ যেমন দলিতস, তারা একসঙ্গে বসবাস করছে। তো আমাদের ফোকাসটা হচ্ছে ইন দ্য ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিজ এরিয়াস। কোন কোন ওয়ার্ডগুলোকে টার্গেট করছেন কলকাতায়? যেটা আপনাকে বললাম কি ওই ইনফরমেশনটা যখনই আমরা দেব, যখন আমরা ক্যান্ডিডেট লিস্টটা প্রকাশ করব। গতকাল আইএসএফও তারা পৌরসভা নির্বাচনে কলকাতায় লড়বে বলে ঘোষণা করেছেন, তাদের সঙ্গে কি আপনাদের কোনো জোট হচ্ছে? আইএসএফ যেটা শুনেছি কি ওনাদের সংযুক্ত মোর্চার থেকে মনে হয় জোটটা ভেঙে গেছে। আপনারা জানেন ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেব 3 জানুয়ারিতে উনি ফুরফুরাত গিয়েছিলেন, পিজাদা আব্বাস সিদ্দিকী সাহেবের সঙ্গে কথা বললেন। ওনার ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবের একটা যে চিন্তা ভাবনা ছিল কি একটা বহুজন ফ্রন্ট, ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিজ এর একটা পলিটিক্যাল ফ্রন্ট সামনে আসুক, আর ওটাকে ফলো করে মিস্টার মামন মিশ্রা মধ্যে বামসেফ উনিও এসেছিলেন। আমরা আমাদের আইডিওলজিতে আমরা অন পাথ অফ দ্য আইডিওলজি আছি, যে কোনো লাইক মাইন্ডেড পলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গে আমরা অ্যালায়েন্স করতে ওপেন। কিন্তু আপনি যে বিশেষ রাজনৈতিক দলের নাম দিয়েছেন, এখনো ওই দল থেকে আমাদের কাছে কোনো রকমের ওরকম কমিউনিকেশন আসেনি। ম্যানিফেস্টোতে কি কি থাকবে, কোন কোন দাবিগুলো? আমরা তো দাবিগুলো বললাম কি যে দাবিগুলো আমরা আরম্ভতে বললাম, সেই দাবির উপরেই আমাদের ইলেকশনটা লড়বো। তার মধ্যে উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজ আসছে, উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজকে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেটাস যেটা মুখ্যমন্ত্রী প্রমিস করেছিলেন, এখনো উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো চাকরির নোটিফিকেশন বেরাচ্ছে না, কোনো চাকরির বসার উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজে লেখার কোনো অপশন দেওয়া হচ্ছে না। সেকেন্ড, আমরা আরবান এমপ্লয়মেন্টের কথা বলেছি, রোজগার যেটাকে বলা হয়। থার্ড, আমরা বলেছি লোকাল ইস্যুস অফ ওয়াটার লগিং, যেটা একটা মেজর ক্রাইসিস ইস্যুস এসছে। ফোর্থ, আমরা বলেছি যে মাইনরিটি কমিউনিটির থেকে, দলিত কমিউনিটিস থেকে যে ল্যাঙ্গুয়েজিং ইন জেলস, বিশেষ করে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আর হাওড়ার মধ্যে একটা বিরাট বড় অংশ যারা জেলের মধ্যে আছে, তাদের চার্জশিট হয়নি, তাদের এগেনস্টে তাদের নিজেদের ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট করে যত জলদি পারে তাদেরকে রিলিজ করা হোক। ফিফথ, আমরা যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন প্রসেস। এখন এনপিআর বিল্ডার সেন্সাস যদি হয়, মাইনরিটি কমিউনিটির মধ্যে একটা আতঙ্ক রয়েছে কি ওদের বার্থ সার্টিফিকেটের নাম ভুল স্পেলিং করা হয়েছে। এইসব জিনিসগুলো ওরা বারবার কর্পোরেশনে যাচ্ছে, ওদের পায়ের চটি ছিঁড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তারা কোনো রকমের ওখান থেকে কোনো রকমের সমাধান পাচ্ছে না। ডকুমেন্টেশন প্রসেসকে আমরা আরো ফাস্ট আর আরো স্পিডি করব। সিক্স, একটা ইস্যু যেটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে ওই সময় আমার মিস হয়ে গেছিল, সেটা হচ্ছে ওয়াকফের যে কারাপশন। হিউজ ওয়াকফ প্রপার্টিজ আছে, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে আপনার হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এবং কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডারে। ওই ওয়াকফ প্রপার্টিজকে উদ্ধার করার জন্য কর্পোরেশন দিয়ে যে আইনি রেকর্ডস ডিপার্টমেন্ট থেকে ডকুমেন্টেশন প্রসেস থেকে আমরা ওয়াকফ বোর্ডের সঙ্গে আমরা কোঅপারেট করে যত বেশি ওয়াকফ প্রপার্টিজকে আমরা মিসম্যানেজমেন্ট থেকে বাঁচাতে পারি সেটা আমরা বাঁচাবো। ফিরাদ হাকিমের দাবি কলকাতাকে সুন্দরভাবে নতুন রূপে সাজিয়েছি, সেখানে আপনাদের আবার কি প্রয়োজনীয়তা পড়েছে? দেখুন, যদি ওয়াটার লগিং যদি নতুন রূপ হয় তবে আমি একমত ওনার সঙ্গে। আর একজন বলেছিলেন লন্ডন হবে, আমার কলকাতা কলকাতাটাই হোক। আমার দাবি থাকলো কি আমার কলকাता कोलकाता ही हो। एमएलए इलेक्शन में आप लोगों ने कम्पीट क्यों नहीं किया, काउंसिलर में क्यों कर रहे हैं? एमएलए इलेक्शन में हम लोग कम्पीट किए थे, लेकिन जैसा हमने आपसे कहा था, हम लोग एक अलायंस का जहन लेके आगे बढ़ रहे थे कि बैकवर्ड कम्युनिटीज एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आए। और जब लास्ट मोमेंट में जब हम लोग को बताया गया कि कांग्रेस और सीपीएम के प्रेशर की वजह से आप लोग को लिया नहीं जा रहा है, या वो अलायंस और वो जो बैकवर्ड कम्युनिटीज फ्रंट जो सोचे थे उसको जब ब्रेकअप हो गया उस फ्रंट का, जब उसको चेंज कर दिया गया फॉर्मेट, तो बस लोगों को ये एक आवाज देने के लिए, बिकॉज लास्ट मोमेंट था, हम लोग 5 सीट्स पे लड़े, सिर्फ लोगों को ये दिलासा दिलाने के लिए कि हम लोग बंगाल के सरजमीन के सियासी मैदान में है, वी आर नॉट गोइंग अवे। और कलकत्ता और दिगर इलाकों से एक दानिशवरों का तबका का भी बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि एमआईएम का कोई अलायंस नहीं हुआ उस वक्त में, जो अलायंस बनने वाला था वो भी टूट गया, जिस वजह से सेक्युलर पार्टीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इलेक्शन था,
हम लोग एक बहुत बड़ा कुर्बानी दिए। बहुत सीट्स में जहां एमआईएम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता था, सिर्फ महज और महज बीजेपी को हराने के लिए हम लोग कॉन्टेस्ट नहीं किए। अच्छा, एक सवाल आपसे मेरा कि आप बोले थे खिदरपुर में वाटर लॉगिंग की समस्या है, लेकिन हाल ही में फिराद हकीम साहब ने वहां पर वाटर रिजर्वर का इनॉग्रेशन किया, जिसका बजट उन्होंने बताया 43 करोड़, और एक और रिजर्वर बनाने की बात कही उन्होंने नवाब अली पार्क में। तो वहां पे वाटर लॉगिंग की समस्या पे तो लड़ रहे हैं वो, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? अगर इतना सा इमरान साहब आप देखिए, बात ऐसा है ना कि ममता बनर्जी ने उर्दू को रिजर्वेशन देने की बात की 2011 में, तो उनकी इस बात को फिराद साहब की मैं इसी तर्ज पर लेता हूँ। दूसरी बात है, ममता बनर्जी ने मैनिफेस्टो में कहा था कि मुर्शिदाबाद में हम लोग यूनिवर्सिटी बनाएंगे, विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो फिराद हकीम साहब की इस बात को मैं इसी बात से लेता हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ देखने की बोलने की बात है। अगर फिराद हकीम साहब 11 साल से यहाँ पर, 10 साल से यहाँ ममता की हुकूमत है, टीएमसी गवर्नमेंट है, और आप सबसे करीब हैं, फिराद हकीम साहब सबसे करीब है, मतलब अगर एक चेहरा है उनके साथ दिखता है तो फिराद हकीम साहब है। तो उसके बाद 10 साल उनको ये बात बोलने में लगा। क्यों पता है क्यों लगा? क्योंकि सीएम का इलेक्शन था और वहां पूरा पानी भरा हुआ था, इसलिए लगा ये बात बोलने में उनको, उन्होंने ये बात कही। तो वादे बहुत सारे होते हैं। मैनिफेस्टो का 2006 का भी देखिएगा, इनका 2011 का भी देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा। इलेक्शन आते ही एमआईएम का जो प्रोसेस जो होता है वो बंगाल में छा जाता है, ऐसा क्यों? क्या आप लोग यहाँ के गवर्नमेंट को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैडम, हम लोग एक तो सियासी पार्टी है, तो सियासी पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, और कोई विकल्प तो बताइए, हम वो विकल्प अपनाएंगे। हमारे पास विकल्प सियासी पार्टी है, जमात है, अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। हम किसी को डैमेज, आप बताइए मुझे, 1998 में जब तृणमूल पार्टी बनी थी तो उसने किसको डैमेज दिया था? ममता बनर्जी तो हाथ वाला बीजेपी को यहाँ पे लेके आए थे, एनडीए में अलायंस में थी, तो किसको नुकसान हुआ था? तो आप जब काम करते हैं, अवाम के लिए काम करते हैं, अवाम फैसला करेगी आप किसको नुकसान, किसको फायदा दे रहे हैं। हम तो अवाम के लिए काम करने के लिए आए, और हम एक सियासी जमात है, हम इलेक्शन लड़ने के लिए आए, हर जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ेंगे। ये सवाल कि आपका कि इलेक्शन लड़ने में आ रहे हैं, तो ऐसा तो ये सवाल तो बेबुनियाद है, इलेक्शन लड़ना ही हमें। देखिए, मैं इस बात पे एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि एआईएमआईएम जो है तेलंगाना में अभी स्टेट रजिस्टर्ड पार्टी है और बिहार में स्टेट रजिस्टर्ड पार्टी है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम का 2 एमएलएज है और 1 एमपी है और बहुत काउंसिलर्स है। गुजरात में बहुत काउंसिलर्स है, कर्नाटका में वेरियस बॉडीज में बहुत काउंसिलर्स है। तो एमआईएम इज ऑन कोर्स टू बिकम अ राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी। एक और रियासत में अगर एआईएमआईएम का 3 से ज्यादा एमएलएस निकलता है या 6% वोट मिलता है, वो नेशनल पार्टी बन जाएंगे, जो बहुत ही कम पार्टीज को ये चीज ये है। तो अगर हमारे यहाँ की जो रूलिंग पार्टी स्टेट का, अगर वो गोवा में जाके लड़ सकती है, अगर त्रिपुरा में जाके लड़ सकता है, तो एआईएमआईएम जो एक नेशनल पार्टी का बहुत ही करीब आ चुका है, वो क्यों नहीं बंगाल जो एआईएमआईएम का जमीन है, यहाँ पे क्यों नहीं वो इलेक्शन लड़ सकता? अच्छा, क्या आप ये महसूस कर रहे हैं? बोलिए। और एआईएमआईएम का जो सियासत है वो किसी को डैमेज करने का सियासत नहीं है। पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली हम लोग बीजेपी से टोटली अपोज्ड है, आरएसएस के आइडियोलॉजी से हम लोग अपोज्ड है। लेकिन जहां तक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, हम लोग किसी को डैमेज करने की सियासत नहीं करते। आप जानते हैं तेलंगाना में एआईएमआईएम का पॉलिटिक्स टीआरएस को एक तरीके से सपोर्ट करता है वहां का सेक्युलर गवर्नमेंट को रहने में, और हम लोग का सियासत है बैकवर्ड कम्युनिटीज का एक मिनिमम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये हमारी सियासत। यानी आपका ये जुबानी है, लेकिन अब तक यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हुआ आपका ये के यहाँ पे ना कोई प्रेसिडेंट बने ना सेक्रेटरी बने, तो कैसे भरोसा कर ले बंगाल के अवाम आपके पर? क्योंकि बंगाल के अवाम का ये जहन बन चुका है कि हम बैरूनी बाहर के लोगों को वोट नहीं देंगे, हम यहीं के लोगों को वोट देंगे। तो क्या गारंटी है कि अवैसी साहब की पार्टी जो बाहर की पार्टी है, उनको यहाँ की जो है अवाम जो वोट दे? देखिए, एआईएमआईएम जो है इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो दिल्ली में है, जो मेरा मुल्क का मरकज है, कैपिटल है। तो एआईएमआई तो इंडिया में कोई भी बाहर का कोई भी अंदर का नहीं होता है। और जहां तक आप अंदर का पार्टी का बात करते हैं, हम आपको मिसाल में तृणमूल कांग्रेस लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस वोट लेता है बंगाल का, राज्यसभा मेंबर्स करता है गोवा का, राज्यसभा मेंबर्स करता है आसाम का। तो बाहरी लोग को बंगाल का सियासत में कौन ला रहा है? एआईएमआईएम ला रहा है या तृणमूल कांग्रेस ला रहा है?
तृणमूल कांग्रेस अगर गोवा में जाके लड़ सकता है, तृणमूल कांग्रेस अगर त्रिपुरा में जाके लड़ सकता है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मगरबी बंगाल में भी लड़ सकती है। हमारा बॉडीज, जहां तक तृणमूल का सवाल है, तृणमूल में एक बांग्ला में कहावत है, एकटाई पोस्ट बाकी सब लैंप पोस्ट, किंतु एमआईए में उल्टा ना। एमआईए में जब जिसको पोस्ट दिया जाता है उसको वो वजन के साथ दिया जा सकता है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसीडियर में दिया जाता है। हमारा 2 जोनल कमिटीज बना है, हमारा अभी तक 20 डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बना है, एक मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, एक कायदा की तरह हम लोग स्टेट बॉडी बनाएंगे। ये नहीं कि कल कोई तृणमूल ऑफिस जैसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर गए एक आदमी को ओवरनाइट राज्यसभा का मेंबरशिप दे देते, वैसा एमआईएम का पॉलिटिक्स नहीं है। दूसरा बात, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सुप्रीमो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका जो बात है, उनका जो जहन है और हमारा जो जहन है वो है हिंदुस्तान का नेशनलिज्म और हिंदुस्तान का यूनिटी को स्ट्रेंथन करना। और यहाँ पे अगर हम नैरो रीजनलिज्म लेके आए, हम लोग उसके मुखालिफत करते हैं, क्योंकि नैरो रीजनलिज्म मुल्क के प्रोग्रेस के लिए, उसके बेहतरी के लिए नहीं है। इमरान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से AIMIM परफॉर्मेंस दिखा रही है हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में, तो क्या लगता है दूसरी पार्टियां जो बीजेपी का टैग लगाए हुए हैं, किसी किसी का खौफ तारी है? बिल्कुल है सर। जब MIM इलेक्शन लड़ने आती है, अगर यहाँ पर इलेक्शन लड़ने आएंगे तो आप बताइए, तृणमूल कांग्रेस है यहाँ पर जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, या यूपी में समाजवादी पार्टी अपने आप सेकुलर बोलते हैं, तो इनको यही डर है कि MIM जो हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट में काम कर रही है, वो यहाँ भी काम करेंगे। ये पार्टी अपने काम से जानी जाती है। हम लोग, हमारे जो सदर है, प्रेसिडेंट है, वो सिर्फ काम पे भरोसा करते हैं, आवाम के बीच में रहते हैं। हैदराबाद में भी अगर आप जाएंगे तो वो हफ्ते में 5 दिन आवाम के बीच में रहते हैं, उनसे जाके आप बैठ के सीधा अपना मसला बता सकते हैं। तो हम सिर्फ काम के लिए जाने जाते हैं। अगर हम यहाँ पर आएंगे तो माल्टी फंड की बात करेंगे, हम विश्वविद्यालय की बात करेंगे, सोशल बैकवर्डनेस जो लोगों में है उनकी, उसके लिए काम करेंगे। मुर्शिदाबाद, मालदा में आर्सेनिक पानी पिला रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट बोलता है 30 है उसमें मॉलिक्यूल से, अगर है पानी में तो वो जहर है, अब 300 है उसमें, वो पिला रहे हैं आप मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो आप सोचिए, तो हम इन सब के लिए आशा साहब ने आकर ये मुद्दा पहले उठाया था कि आप जो पानी पिलाते हो वो पानी सही नहीं, जहर है। हेल्थ डिपार्टमेंट बोलता है जहर है। तो हम इन सब मुद्दों पे काम करेंगे। हमारा वो नहीं है कि हाँ ताली बजाओ थाली बजाओ, हमारा वो कहानी नहीं है। हम हथेली में मोदी जी, तो इलेक्शन के वक्त ही मुद्दा आपका क्यों शुरू हो जाता है? इलेक्शन से पहले आप क्यों काम कर सकते हैं? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। इलेक्शन से पहले मैं एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले मैं आपको 10 लेटर्स दिखा दूंगा MIM की तरफ से पब्लिक प्रोग्राम का परमिशन, जहां पुलिस कोविड गाइडलाइंस के बहाना में AIMIM को पब्लिक मीटिंग करने में डिनाई करता है। और मैं उसको एज एन ऑपोजिशन पार्टी बंगाल में मैं ये भी बोल सकता हूं कि कोई भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करने दिया जा रहा इन द नेम ऑफ कोविड गाइडलाइंस। अब ये सरकार तरी घड़ी में म्युनिसिपल पोल्स डिक्लेयर करती है, अभी तक कोविड गाइडलाइंस है, कैसा पब्लिक मीटिंग्स होगा, कैसा हम लोग जमायत करेंगे? सरकार उसका उत्तर दे। यहाँ पे डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। MIM का लड़का लोग को अरेस्ट किया गया 2 साल पहले, क्यों? वो पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली NRC और NPR का आंदोलन कर, उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। यहाँ सिर्फ आंदोलन करने का हक सिर्फ यहाँ के रूलिंग पार्टी को है, ऑपोजिशन स्पेस नहीं है। क्या ये जमहूरियत है? आप लोग पूछिए, आपको क्या ये जमहूरियत चाहिए?